Yes, good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good, safe, and healthy at home and doing study regularly. Yes, dear student. So, welcome back for discussing next topic from chapter 9. Okay, dear students, we are studying chapter 9, that is problem of deficient demand and excess demand in the economy. And yesterday we have completed natural unemployment, full employment, and along with the 2 points we have already completed yesterday, frictional unemployment and structural unemployment. So today, dear student, we are going to start a 6 mark question. A 6 mark question means what is deficient demand, what are the measurement, what are the consequence of this, or what are the reason. It means there are the four things which we are going to discuss in deficient demand, and tomorrow we will discuss about the excess demand. Okay, dear student, so let's start. Yes, deficient demand, as you all know, equilibrium means AD equals to AS, aggregate demand equals to aggregate supply. But when both are not equal, that is disequilibrium. But the disequilibrium is okay, there is no problem in disequilibrium. But deficient means, beta, deficient means when aggregate demand is less than aggregate supply. It means supply is in the economy, supply तो हो रही है, but people are not demanding, लोग demand नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज रियली अ डेंजरस प्रॉब्लम कि प्रोडक्शन हो रहा है, डिमांड नहीं हो रही है, तो हाउ द सप्लायर विल सर्वाइव. सप्लायर जो भी है, प्रोड्यूसर जो भी है, वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे इकोनॉमी में. सो नाउ discuss about that. We are here. Yes, so deficient demand means a deficiency of AD. Okay, deficiency of AD means when aggregate demand is less than aggregate supply and corresponding to full employment in the economy. It means economy में तो full employment है, that's why is AS is 100%, सप्लाई तो 100% है, बट AD इज शॉर्ट, AD कम है. तो जब भी AD कम है, दैट इज डेफिशिएंट डिमांड. AD ज़्यादा होगी, दैट इज एक्सेस डिमांड. Clear? Yes, dear students. So now move to the next point, and the next point is what are the measures? What are the measures of measurement of deficient demand? Diagrammatically हम पढ़ेंगे कि कैसे हम measure कर सकते हैं. So now move to the next point. Yes, here is the diagram, and in this diagram, beta, just observe. On the x-axis, income or GDP is given. On the y-axis, AD is given, aggregate demand is given. As you all know, AS always be shown by the 45-degree line, because there is a basic reason behind it we have discussed in the earlier chapters. AS equals to y, and it always be 45-degree line. So this AD, this AD लाइन इज शोइंग फुल एम्प्लॉयमेंट. अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है तो AD यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है ई पर. बट वी आर स्टडिंग डेफिशिएंट डिमांड. अगर डिमांड कम है तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे एग्जिस्ट कर रही है. AD, प्लान AD मीन्स AD यू आप इसे दिखा सकते हो. ओके, क्लियर और नॉट? डन? यस डियर स्टूडेंट. ADE means ADF means full employment. ADU means under employment, कि सब लोगों को काम नहीं मिला है, सो हो सकता है उनकी डिमांड इस वजह से भी कम है, उनके पास इनकम कम है. सो फर्स्ट लाइन इज शोइंग दैट, फर्स्ट लाइन मीन्स दिस लाइन इज शोइंग दैट दिस इज 45-degree लाइन AS, दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन. अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है तो AD और AS ई पॉइंट पर मीट करेंगे. बट वी आर स्टडिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स डेफिशिएंट डिमांड, डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट से कम है, सो हम उसके नीचे ही एग्जिस्ट करेंगे. क्लियर डियर स्टूडेंट? यस. सो द डिफरेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट के बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज डेफिशिएंट डिमांड. हेयर इज द डेफिशिएंट डिमांड. द पॉइंट इज डेफिशिएंट डिमांड. क्लियर डियर स्टूडेंट? दिस इज डेफिशिएंट डिमांड. ओके, it means EF is deficient demand. EF is D. Here is E and here is F. Both are showing the deficient demand. Okay. So this is the diagrammatic presentation of deficient demand. Full employment के नीचे आप कोई भी लाइन बनाओगे, it will show the deficient demand. Okay. So now move to the next point. And next point is, yes. Next, what are the causes of deficient demand?
अभी तक हमने मीनिंग क्लियर किया. डेफिशिट डिमांड मीन्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई. डिमांड जब कम है दैट इज डेफिशिट डिमांड. देन आफ्टर वी हैव स्टडी अबाउट द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कि डायग्राम में आप कैसे शो करोगे डेफिशिट डिमांड. बट व्हाट आर द कॉजेज व्हाई डेफिशिट डिमांड इज अकर्स इन द इकोनॉमी की इकोनॉमी में ऐसी क्या सिचुएशन होती है जिससे कि डेफिशिट डिमांड होती है. दैट इज कॉजेज. सो वी हैव सेवरल कॉजेज. द फर्स्ट, we are studying only two sector economy according to your CBSE syllabus. There are the two sector economy C plus I, consumer and household. Consumer means household sector and I means investment producer sector. Okay, so now what happen, अगर डिमांड कम है तो इसका मतलब सभी सेक्टर से डिमांड कम होगी तभी एग्रीगेट डिमांड कम है. सो फर्स्ट, रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. लोगों ने अपने प्राइवेट खर्चे, प्राइवेट एक्सपेंडिचर ही कम कर दिए. हाउस होल्ड ने अपने खर्चे कम कर दिए हैं. सो इट मीन्स हाउस होल्ड विल बी शोन बाय सी. हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कम हो गए, सो डिमांड भी कम हो गई. रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. ओके, इट मीन्स प्रोड्यूसर ने भी इन्वेस्टमेंट कम कर दी है तो इट मीन्स प्रोडक्शन आई भी कम हो गया है. तो दोनों ही क्या हो गए बेटा, कम हो चुके. अब नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट मीन्स if there are the four sector economy, so what will happen if there is in two sector economy, household decreases their expenditure, okay, and private investment also decreases. So it means in two sector economy both sectors reduces the expenditure. दोनों ने अपने एक्सपेंडिचर कम किए दोनों सेक्टर ने, सो एडी डेफिशिएंट है. बट व्हाट अबाउट द फोर सेक्टर इकोनॉमी. अगर हम फोर सेक्टर इकोनॉमी की बात करें, सो हियर आर द फोर सेक्टर इकोनॉमी. सो नाउ लुक एट हियर. रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. हाउस होल्ड और इन्वेस्टमेंट तो हमने पढ़ ही लिया है. अगर गवर्नमेंट भी अपने एक्सपेंडिचर क्या करे, कम कर दे. ओके, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स. इट मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो डिमांड है फॉरेन कंट्री से वो भी क्या हो गई है डियर स्टूडेंट्स, कम हो गई है. सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की डिमांड कम होने से भी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी. राइज इन इम्पोर्ट्स. लोगों ने अपनी कंट्री का सामान यूज करना कम कर दिया है. इवन दे आर डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्ट्स. वो बाहर का सामान यूज कर रहे हैं. सो डिमांड फॉर द इंडियन गुड्स, डिमांड फॉर द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स विल बी रिड्यूस. ओके, इंक्रीज इन टैक्स रेट. इट इज द अनदर फैक्टर. Increase in tax rate. Increase in tax rate means when tax rate increases our real income is decreases. जैसे suppose मेरे पास 100 रुपीज़ है and the tax rate पहले 30 था तो I spent 70 on consumption, but now suppose tax rate is 50 या 60. अब मान लें कि टैक्स रेट 60 हो गया, सो नाउ 40 रुपीज़ इज लेफ्ट. 40 रुपये बचे हैं, 40 रुपीज़ मेरे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. तो जब मेरी इनकम कम होगी, रियल इनकम कम हो गई टैक्स बढ़ने से, तो मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा. सो अगेन लुक एट हियर. Yes, first of all just understand that point. AD always equals to C plus I plus G plus X minus M. It means net exports plus, अच्छा चलो ये ठीक है, tax rate. Tax rate. Here are the 5 points. सो डेफिशिएंट डिमांड के लिए सभी सेक्टर्स की डिमांड को हमें कम करना. इट मीन्स डिक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. हाउस होल्ड के खर्चे कम है. डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंड, प्रोड्यूसर के खर्चे भी कम है. डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने भी खर्च करना कम कर दिया है. एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हो गए हैं. लोगों ने, विदेशी लोगों ने फॉरेन कंट्रीज़ में डिमांड कम कर दी इंडियन गुड्स की. इम्पोर्ट्स इंक्रीज, हम फॉरेन कंट्री से बने गुड्स यूज़ कर रहे हैं. सो एंड इंक्रीज इन टैक्स रेट. सो देखो सारी चीज़ें डिक्रीज हुई है, सी आई जी एक्स, बट इंक्रीज दो चीज़ हुई, इम्पोर्ट्स और टैक्स रेट अगर इंक्रीज होते हैं तो ऑल 6 पॉइंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेफिशिएंट डिमांड. ये सारे के सारे जो रिस्पॉन्सिबल पॉइंट है बेटा, ऑल आर फॉर द डेफिशिएंट डिमांड. ओके, यस. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, we have discussed first of all meaning. And what is the meaning? When aggregate demand less than aggregate supply. Simple. And how we'll show in diagram? So there is a difference between AD at F full level and AD at underemployment level. So EF showing the, this EF is showing the deficit demand. Okay, yes dear students. So next we have discussed about that diagram. Then after causes में हमने पढ़ा कि which factors are responsible for decrease in demand. So here are the factors. Yes. So next, consequence of deficient demand. अगर deficient demand इकोनॉमी में है, so which situation will occur in the economy? तो क्या होगा? Very interesting point. Yes. तो हमें पता होना चाहिए. अंडर एम्प्लॉयमेंट,
जब डिमांड कम है तो नेक्स्ट टाइम प्रोड्यूसर विल डिक्रीज द प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन कम कर देगा। अगर प्रोडक्शन कम करेगा सो अल्टीमेटली उसे एम्प्लॉयमेंट भी कम करनी पड़ेगी। जब मुझे काम कम करवाना है तो मैं लोगों को भी जॉब से हटाऊंगी। सिंपल लॉजिक इज हेयर। सो व्हेन डिमांड इज डिक्रीजेज, एडी कम है, सो प्रोड्यूसर क्या करेगा बेटा, ही विल रिड्यूस द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन का लेवल भी कम कर देगा। प्रोडक्शन का लेवल कम होते ही एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम होते ही लोगों की इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होते ही एग्रीगेट डिमांड अगेन कम होगी, और दिस प्रोसेस कंटिन्यू स्लिप द इकोनॉमी इन द डेब्ट ट्रैप। इकोनॉमी हमारी बिल्कुल ही रिसेशन में चली जाएगी। येस, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो सबसे पहले क्या होगा बेटा, अंडर एम्प्लॉयमेंट विल अक्कर। अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स लोगों को काम नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। सेकेंड कंडीशन इज डिफ्लेशनरी गैप। इट मीन्स एग्रीगेट डिमांड और फुल डिमांड के बीच का जो गैप है वो हमारा डिफ्लेशनरी गैप को शो करेगा। लुक एट हेयर, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ लो एडी मीन्स लो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्रोड्यूसर कम इन्वेस्ट करेगा। अब इन्वेस्टमेंट कम है देन आउटपुट विल बी लो, आउटपुट कम है देन इनकम विल बी, क्योंकि सेल कम होगी तो इनकम भी कम होगी। सो economy will slip into the deflationary spiral. Deflationary spiral means deficiency for each and everything. Yes, so deflationary gap you can show here. Yes, this is the deflationary. See here, look at here, deflationary gap. डेफिशिएंट डिमांड इक्वल्स टू डिफ्लेशनरी गैप। डेफिशिएंट डिमांड को ही हम डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। इट मीन्स इट इज़ अ गैप बिटवीन फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये सिचुएशन इकोनॉमी में रहेगी। नेक्स्ट, अनडिजायर्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक है जो प्रोड्यूसर के पास बचा रहेगा, क्योंकि डिमांड कम है तो सेल कम हो रही है, दैट्स वाई। लॉस ऑफ प्रॉफिट, इट मीन्स जब तक हर इन्वेस्टर का कुछ ना कुछ अमाउंट बेटा जो ऐसा डिज़ायरेबल अमाउंट होता है जो कि वो प्रॉफिट के लिए ऐड करता है। सपोज कॉस्ट इज़ 10 रुपीज़ और उसने जो 2 रुपये प्रॉफिट ऐड किया है, सो सेलिंग प्राइस इज़ 12, और जब तक ये कॉमोडिटी सेल नहीं हो जाएगी उसका जो ये प्रॉफिट है ये भी उसे नहीं मिलेगा। इट मीन्स देयर इज़ नो रिटर्न ऑन द प्रोडक्ट। सो लॉस ऑफ प्रॉफिट मीन्स अनसोल्ड स्टॉक है, जब तक वो सोल्ड आउट नहीं हो जाएगा तब तक उसको प्रॉफिट भी उसको नहीं मिलेगा प्रोड्यूसर को। सो दिस इज़ द कंडीशन। So we have discussed causes, or in causes we have studies about the 4 points. First was the unemployment or underemployment in the economy. Okay, second deflationary gap hoga, this is the deflationary gap, this one EF. Okay, it is equals to deficient demand. Then after undesirable stock, unsold stock will be available with the producer, and then loss of profit. Okay, clear? I hope you understood all the point. Yes, dear students, so try to understand beta and read from your book and do your work on the regular basis, and you can call me if there is any doubt in any topic in between 3 p.m. to 4 p.m. Okay, so don't hesitate, ask your doubts, dear students. Stay blessed, stay safe.